Welcome, sir. Sir, this is a small model of Jaunpur city. Sir, come here. Sir, this is our city international school. This is your school? Yes, sir. This is our school logo. Yes. Sir. What is this? Sir, these are the famous rivers of Jaunpur. The first one is Vasuhi, that is 3000 year old, जो कि 3000 साल पुरानी है. And the second one is Sai, third one is Pili, and fourth one is Gomti, and fifth one, last one is Varuda. Very Yes, good. sir. What is this? And sir, this is Shahi Pool. It was made in 1567. Na sir. So sir, when Akbar come here to travel, he noticed that the people who are living in Jaunpur, they are facing very problem. So he want to make a bridge. So he wanted to make this, but there was no any governor to make this. So who can support with Akbar? So Akbar made a governor whose name was Muhim Khana. So Muhim make this pool by support of Akbar. So this pool is made in 1567. So here is the pool of a small version. Thank you, sir. And sir, this is Shahi Kila, sir. It this is is also known as important, sir. Royal Fort. Yes, sir, Royal Fort. It was made in 1362 by Firoz Shah Tughlaq, a Turki dynasty ruler. The size of the tall of the wall is 26.5 foot and the wide of the wall is 16 foot. सर जो wide है वो 16 फुट का है and जो सर tall है जितना लंबा है वो 26.5 फुट है. Yes, sir. Thank you, sir. Tell about what is this? Sir, these were a famous personality of Jaunpur. Sir, as you know that Rajesh Vivek Upadhyay, he was an industry member in Jodha Akbar. Yes, sir. Sir, ये काम किया था जोधा अकबर में. Yes, sir. Sir, he is Ravi Kishan Shukla. He has also worked in film industry and in Bhojpuri cinema. He is also a famous actor of Jaunpur. And sir, Syed Wazir What is the Hasan. present time situation? He is a contestant in BJP. Yes, sir. Thank you, sir. And sir, Syed Wazir Hasan, sir, he is also a very famous poet. And sir, here is Yadvind Dutt Dubey. He was the last emperor of Jaunpur, and I am very proud of him that he was the last emperor of Jaunpur. Thank you, sir. And sir, Ram Naresh Tripathi, he was also a famous poet. And sir, Paras Ranath Yadav, he was a sir, ये एक राजनीतिक अध्यक्ष थे, बहुत ही famous थे. He was also famous. Sir, Ashok Bhushan, he was a judge in Who Supreme is Court. this? Sir, she is Radha Yadav, famous cricketer. I am very proud of her. Sir, I want to become like her. Sir, I also want to become like her. She is a rising star of your India. She have made her name in high level. Sir, so I also want to achieve a like star like her. Priyanka Pandit. She is Priyanka Pandit. She has also worked in film industry. What Yes. is your favorite play? Sir, cricket. I want to Cricket. play cricket. Yes, sir. So my hobby is to cricket. Sir, it is famous in Jaunpur and in other places near to Jaunpur. Sir, Yeah, yes. very good. Yes, sir. They are near to Jaunpur. Yes, sir. Sir, the first one is Imriti. Sir, the GI tag of Imriti is 999. Yes, sir. Who is this honor of this? Sir, Beni Ram. yes, sir. Beni Ram. Yes, sir. Beni Ram Yes. Sahu या Yes, Beni sir. Ram? Yes, sir. ये next And sir- product, what is your? आपका Yes. प्रोजेक्ट very बहुत Sir, अच्छा. you know about this? I think you have wondered this. Wow, sir. This This is is Madhav Madhav Pattigaon. Patti. Yes, sir. I am very proud of this village. Yes, sir. Sir, the village has 70 houses, but in present time there are 53 IS officer. Sir, यहाँ पे जो ये village है Madhavpatti, we have made a map of that Uttar Pradesh, and there is the location of Madhavpatti village. Yes, sir. Sir, यहाँ पे 47 officers पाए गए थे. Yes, sir. Thank you. Yes. Sir. IS officer. Yes, sir. Maximum officer. Lead in all India's country. Yes, sir. States. Next product क्या So है? here is the small version of V2 Mart. And sir, this TD college. Yes, sir. Yes. They starting developing of this TD college is at 1914. 1914 में this is started to develop. ये develop होना start हुआ था 1914 में. And sir, in 1916 it name was held that is शिक्षक क्षेत्रीय हाई स्कूल. 1960 में इसका क्षेत्रीय हाई स्कूल रखा गया था नेम. सर बट जो प्रिंसिपल थे वो सेटिस्फाई नहीं थे इस पे ना सर कि वो इसको और बड़ा बना थे. तो सर जब 1940 आया, आफ्टर सम टाइम इन 1914 इट बिकेम डिग्री कॉलेज, डिग्री इमीडिएट कॉलेज ना सर, मीडिएट कॉलेज. एंड सर आफ्टर
ये क्या है? इसको लिखा है। Sir, this is Dhobi Gaon. In 1857, these guys were moving when Britishers was passing from the village Dhobi Gaon. Some army officers were attacked by the British, and the British hanged them over a tree. Britishers ने इनको ना कुछ पेड़ों पे टांग दिया था, मतलब लटकाया था. They have died for all of us, but we are not showing them in India, in world. We are not showing them, but we want to show them. We are presenting them. तो हम उनको प्रेजेंट कर रहे हैं, हम उनको दिखाना चाहते हैं कि हाँ वो they died for all of us. So sir, I am here to present them, all of them. Yes sir. So my motive is all are equal. If they are died for all of them, all of us, this is responsibility to show them. So their responsibility, show their bravery. Yes sir. Thank you sir. beta. What is your name, beta? My name is Srishti Dubey sir. Yes sir. What is your village? My village is Gopalapur, Ramnagar Gopalapur. Gopalapur. What is Yes. your father's name? My father name is Mr. Vivek Dubey. Yes sir. Vivek Dubey. Thank you. Tell about something. This is Chowkiya Dham sir. It is 800 years old. सर ये 800 years old पुराना टेम्पल है, एंड सर दिस इज वेरी फेमस इन जौनपुर. आई थिंक यू हैव आल्सो वंडर्ड इन दिस. सर आपने भी इसको वंडर किया होगा, कभी ना कभी घूमा ही होगा. एंड सर इसको जो बनाने वाला था द एम्परर यादव एम्परर हु हैज मेड दिस, इसको एक यादव एम्परर ने बनाया था, एंड दैट इज वेरी फेमस इन जौनपुर. सर आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम दैट ही हैज मेड अ टेम्पल लाइक दिस, एंड इट इज करंट टाइम इट इज आल्सो फेमस, वेरी फेमस प्लेस इन जौनपुर. यस सर. Yes sir. What is this? So this is medical college. It was made in 2021, and it is also recognition with Atal Bihari Vajpayee College, and it is connected with an NMC National Medical College. ये connect है National Medical College से, ये connected है. And sir इसकी जो स्थापना हुई थी वो 2021 में हुई थी. Thank you sir. कहने का मतलब यही बेटा कि Thank you, आपका बेटा. जौनपुर सिटी हाँ जो जी है, सर. Yes sir. है ना? Yes. ये जो जौनपुर सिटी बेटा एक केवल नाम नहीं है, Yes sir. समझा Yes, sir. बेटा ये एक हिस्टोरिकल Yes sir. In आपको few पता है years. बेटा, Yes sir. जौनपुर को शिक्षा की नगरी बोलते हैं. Yes. ये बच्चों ने मेहनत की है, अच्छी मेहनत मेहनत की किया है है। और अच्छा एक्सप्लेन किया है. लोगों को लगता नहीं कि गांव के बच्चे इतना अच्छा एक्सप्लेन कर जाएंगे. हम कर रहे हैं. मैंने जब सारी चीजों से पूछा, मुझे लगा अरे ये तो बहुत बड़ा चमत्कार है. ये बच्चे बोल भी रहे हैं जो इन्होंने बनाया है. नहीं, अब तक हम केवल यही जान रहे थे कि बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं, लेकिन अब हम ये जानेंगे कि हमारे बच्चे कितने क्रिएटिव. सर जो ये साइंस का एग्जीबिशन आज लगा है, जी. तो बच्चों ने अपने माध्यम से बहुत सारी चीजें यहाँ पे प्रस्तुत की. तो सर बच्चों को सारे ये मॉडल्स या फिर और चीजें आप लोगों ने दिया था कि ये सेल्फ करके लाए? नहीं, हम लोगों ने कुछ नहीं दिया था. और जितने भी हमारे बच्चे हैं हर क्लासेस के, विशेषकर क्लास 4 to क्लास 12, ये बच्चे खुद यहीं पे रह करके स्कूल में ही बनाए हैं. इनको केवल 3 से 4 दिन का समय दिया गया था, और इसी सिटी इंटरनेशनल स्कूल पिलखिच्चा जौनपुर में ही ये बच्चे क्लास में आकर के क्लास के साथ साथ बैठ करके पूरी जितनी कटिंग करना है, जो प्रोजेक्ट मॉडल बनाने हैं, सब यहाँ पर ही बनाए हैं. जी सर. अच्छा सर, जो प्रोजेक्ट मॉडल है जिसमें हर बच्चे ने एक मॉडल बनाया है, जी. जो उसका एक्सप्लेन कर रहे हैं, वो सब आपने स्किल दिया था बच्चों को कि वो भी स्वयं से एक्सप्लेन भी कर रहे हैं? इसके लिए हमारे जो टीचर्स हैं कुछ उनको गाइड किए जी कि क्योंकि हम जानते हैं कि गुरु से बड़ा कोई है नहीं, जी जी लेकिन उन्हीं की देख रेख में ये बच्चे अपना अच्छे ढंग से इस कार्य को किए हैं. जी सर. ये सिटी इंटरनेशनल में सर पहली बार हो रहा है. सर जी, सबसे जी. ज्यादा सपोर्ट सर महबूब सर ने और सर प्रीतम सर ने किया सर, ये सबके लिए. जी सर. सभी तो टीचर ने काफी मेहनत किया बच्चों के साथ, जी. जिसका ये रिजल्ट रहा. और हम तहे दिल से अपने सभी टीचर्स को और अपने सभी स्टूडेंट्स को धन्यवाद देते हैं. आगे जब फिर कभी हमारे यहाँ ये कार्यक्रम होगा और होता रहेगा, जब भी होगा इसे बेटर करके हमारे बच्चे और हमारे टीचर दिखाएंगे. तो सर एक और मेरा प्रश्न है, जी. जैसे ये रूरल एरिया है, जी, गांव जी. के बच्चे हैं, और गांव के बच्चे में वो स्किल डेवलप करना, इंग्लिश से उनको कनेक्टिविटी रखना, क्योंकि जब ये गांव में जाते हैं तो अपनी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ आके वो इंग्लिश में एक्सप्लेन कर रहे हैं, इंग्लिश में हमको समझा भी रहे हैं. तो ये कहाँ तक आप लोग संभव कर पाते हैं, कैसे सिखा पाते हैं कि रूरल एरिया के बच्चों को आप अच्छे से ट्रेन करके आप इन सब चीजों को कर दे रहे हैं? इसके लिए बीच बीच में पेरेंट्स से भी कम्युनिकेशन होता रहता है. जी. अब आगे और हम कराएंगे, क्योंकि जितना कम्युनिकेशन हमारा पेरेंट्स से होगा, हम पेरेंट्स से जुड़ेंगे, वो घर की बात बताएंगे बच्चों से, मतलब कि उनका कैसा व्यवहार है घर पर, जो है परिवेश कैसा है वहाँ का, स्कूल का कैसा है. दोनों जब एक दूसरे से कम्युनिकेशन पेरेंट्स का और टीचर्स का बनेगा, स्कूल का बनेगा, तो बच्चे को बेटर बनाने में काफ़ी अच्छा रहेगा.
क्योंकि अब हम यहाँ पे इंग्लिश मीडियम स्कूल में हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, यहाँ पर उनका बिहेवियर, उनका रहन सहन, बोलना चलना अलग है। घर जा करके बदल न जाए, उसके लिए हम सभी वही प्रश्न था जी, सर जी, मेरा। उसके लिए हम पेरेंट्स से यही कहना चाहेंगे कि बच्चे को एक अच्छा माहौल वहाँ पर क्रिएट कराए, जी उनके साथ उसी प्रकार से पेश आए जैसे स्कूल में टीचर आते हैं, ताकि वो बच्चे और अच्छे बने। और इसके साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा, जो मेरा अपना अनुभव है, कि विद्यालय में, क्लासरूम में, हर जगह पे भय युक्त माहौल न बना करके भय मुक्त माहौल बनाया जाए, ताकि बच्चे अपनी परेशानियों को आपसे शेयर कर सके जी। और आप उनको बेटर बना सके। अगर बच्चा भय में रहेगा तो हो सकता है वो कुछ क्वेश्चंस आपसे न पूछ पाए। तो इसलिए हमको एक हैप्पी लर्निंग, हैप्पी क्लासरूम बनाना है, बच्चों को क्रिएटिव माइंड का बनाना है, ताकि हमारा देश और विकास करे। ये हमारे देश के भविष्य है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आपने जो साइंस एग्जीबिशन रखा है इस रूरल एरिया में, और इस सिटी इंटरनेशनल स्कूल के आप प्रिंसिपल पद के कार्यभार में हैं, और मैंने देखा भी सारे बच्चों ने अच्छी एक्टिविटी की, अच्छे से अपने प्रोजेक्ट बनाए। तो आप कुछ एक संदेश इन बच्चों के गार्जियंस को क्या देना चाहते हैं, वो किस तरीके से इनके साथ पेश आए कि आप इनमें और इम्प्रूव कर सकते हैं? हम गार्जियंस को यही संदेश देना चाहते हैं कि जो गार्जियंस यहाँ पे आए हैं वो खुद देखे हैं जी, कि जो नहीं बच्चों आ के पाए अंदर कितनी जो है क्रिएटिविटी है, और जो नहीं आ पाए हैं उनको भी हम ये संदेश देना चाहते हैं कि स्कूल में जब भी कोई इवेंट्स ऐसे किए जाए जी उसमें वो जरूर आए, चाहे जैसे वो समय जरूर निकाले, क्योंकि ये स्कूल का प्रोग्राम तो है ही, इसके साथ ही साथ बच्चों का और उनका भी है। उनके आने से बच्चों के अंदर एक और ललक उत्पन्न होती है, वो देखते हैं कि हमारे पेरेंट्स आए हैं। जब वो अपने पेरेंट्स को और अपने टीचर्स को अपने साथ पाते हैं तो उनके अंदर एक और अलग से जो है जोश आता है, ताकि हम अपने कार्य को और अच्छे ढंग से कर सकें। और इसके साथ ही साथ पेरेंट्स से हम भी ये भी कहना चाहेंगे कि वो अपने बच्चों को ऐसे सब कार्यक्रम जब भी आयोजित किए जाए तो उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने के लिए उनको प्रोत्साहित करें, ताकि हमारे बच्चे और आगे जाए। आज हमारा भारत देश कितना आगे जा रहा है ये सबको पता है, तो यही हमारे भारत देश के भविष्य हैं जो कि आगे जरूर जाएंगे, अगर सपोर्ट हमारे पेरेंट्स का, हमारे टीचर का, स्कूल का, सबका रहा तो। जी सर, थैंक यू सर, आपने अपना समय दिया और टीचर्स को और यहाँ के गार्जियंस को भी एक संदेश दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।